हेलो एवरीवन, मेरा नाम निष्ठा बंसल है। मैं एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हाँ इंट्रो पल्स। मैंने अपना नीट 2020 सीखा थी। मेरे मार्क्स 683 सीखे थे। मेरा रैंक 484 सीखा। तो आज आप एक नवा चैप्टर स्टार्ट करांगी जिसका नाम एनिमल किंगडम है। ये एक प्लांट मतलब एनिमल डाइवर्सिटी का एक चैप्टर है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲਮ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੈप्टर ਨਾਲ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देती है जब कि हर चैप्टर्स देती है कि यू कैन लुक अराउंड एंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स. As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. ये सारी बेसिक चीज़ अपने मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर 1 ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ कि नॉमेनक्लेचर ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। कि ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ हैं या फिर ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੋ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ now we have over a million species of animals. ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Take systematic position, assigning a systematic position to describe the new species. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ basis of classification ਕੀ ਹੈ। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells. कुछ मतलब हर एक एनिमल का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली अलग ही है, हर एक स्पीशीज का एक दूसरे तो डिफरेंस होता है, बट कुछ फंडामेंटल फीचर्स होंगे ने ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀशीज ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੀਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬॉडी ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੀਲੋਮ ਇਜ਼ ਬॉडी ਕੈਵਿਟੀ, ਫਿਰ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ, ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਸ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਮਿਲਕੇ ਆਰਗਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਗਨਸ ਮਿਲਕੇ ਆਪਸ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮਿਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। The all members of Mammalia are multicellular. Mammalia ਦੇ ਸਾਰੇ members multicellular ਨੇ, but all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. But pattern of organization of cells अलग है। For example, sponges है। Sponges अपना पहले फाइलम ਚ आ जाएगा पॉरीफेरस। जब आप आगे पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगा। तो हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं नाल जो स्पॉन्जेस है। स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। फिर कुछ डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है सेल्स के अंदर की कुछ सेल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादा होंगे तो ज्यादा फंक्शन डाइजेशन होएगा। कुछ सेल्स के अंदर पोर्स होंगे तो उन्होंने फंक्शन एक्सक्रीशन होएगा। फिर कुछ सेल्स के अंदर अपेंडेजेस होंगे सीलिया तो उन्होंने फंक्शन होएगा मूवमेंट वगैरह, जिहड़ा भी मटीरियल है उन्होंने मूव करना। तो इनमें करके बहुत अलग अलग फंक्शन है सेल्स दे अमंग्स डिवाइड होंगे ग्रुप ऑफ सेल्स दे बॉडी। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट्स भी है सेकंड फाइलम जानते हैं सिलेंट्रेट्स। तो इन्हों के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ सेल है थोड़ी कंप्लेक्स हो जाती है। Here the cells performing the same function are arranged into tissue, hence that is tissue level of organization. The coelentrates के अंदर अपन मिल गया tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by the members of platyhelminths and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized to form a particular function. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ
ऑर्गन लेवल है, प्लैटी हेलमेंट्स ते उस तो उत्ते सारे सब दे अंदर ऑर्गन लेवल है, तो उस तो बाद आप ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं। हम जब में बोल रहे कि इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क्स, echinoderms and chordates, organs have associated to form functional system, each system concerned about a specific physiological function. This is called organ system level of organization. ठीक है, when organ system in different group of animals exhibit various patterns of complexities. ਹੁਣ ਅੱਗੇ organ system ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ various patterns of complexities ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ digestive tract ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ digestive system ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ ਦਾ digestive system ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ digestive system ਹੈ, ਉਹ GIT tract ਮਤਲਬ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ट्रैक्ट ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ एनस तक ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ GIT ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਐਨੀਮਲਸ ਮਾਊਥ ਤੇ एनस ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ which used to function both as mouth and anus। फिर हौली हौली फिर एक ब्लाइंड सैक की तरह हो गया कि बस सिंगल ओपनिंग है, इसी तो अंदर जाएगा, इसी तो जो बाहर जाएगा सारा मटेरियल, तो इस करके ना ब्लाइंड सैक अरेंजमेंट हो जाएगी। फिर उस तो बाद आ जाता है कि दो ओपनिंग्स होगी तो एक और ट्यूब की तरह हो गया, फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। हम थोड़ा और थ्योरी सीखते कि लिखा है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन प्लैटी हेलमेंट्स, प्लैटी हेलमेंट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम है बट ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ to the outside of the body that serve both as mouth and anus, hence is called incomplete। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ प्लैटी हेलमेंट्स ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। A complete digestive system has two openings, complete ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ two openings। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼। ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ या तो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल करता है या फिर की होंदा प्रिमिटिव एनिमल्स की ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पूरी बॉडी कैविटी के अंदर ही डिस्पर्स्ड ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ हर एक ऑर्गन ब्लड के अंदर बाथ ਹੁੰਦਾ। मतलब ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਸਬਰਗਸ ਹੈ, मतलब ਇਹ एग्जांपल ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ रेफरेंस ਲਈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀ ਆਫ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ऑर्गन्स ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਆਫ ਬॉडी ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਪੰਪਡ out of the heart and the cells in the tissue are directly bathed in it. Closed type, in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries. ठीक है, अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह का होगा। उस तो बाद अगे आने की सिमेट्री की है। ठीक है, सिमेट्री लगे कि एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री स्पॉन्जेस आर मोस्टली asymmetrical। स्पॉन्जेस होंगे ने asymmetrical, that is any plane passes through the center does not divide them into two equal halves। ਹੁਣ सिमेट्री ਦਾ ਕੀ मतलब है? सिमेट्री ਦਾ मतलब ये है कि अगर ਆਪਾਂ कोई मतलब कोई एनिमल है कि ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ वर्टिकल प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन कोई भी प्लेन पास करिए तो ਜਿਹੜੇ दो पार्ट्स बननगे वो एक दूसरे ਦੇ मिरर इमेज होने चाहिए ने, आइडेंटिकल होने चाहिए ने। बट स्पॉन्जेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ obtain ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ asymmetrical ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ any plane does not divide them into two equal halves। When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two equal halves is called the radial symmetry। radial symmetry ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ प्लेन है वो सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास होना चाहिए। एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, तो हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। फिर आते हैं कि सिलेंड्रेट्स, सीनोहोल्स एंड काइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। सिलेंड्रेट्स, काइनोडर्म्स एंड टीनोफोर्स ये होंगे ने रेडियली सिमेट्रिकल। उस तो बाद आ जाते हैविंग दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। Animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into two identical left and right halves in one plane only. उनके हो गया कि animals like annelids, arthropods and so on can be divide हो सकते हैं in one plane only, तो उन्हें क्या बोला जाएगा bilateral symmetry। मतलब एक ही प्लेन है, जब यहाँ वाली डायग्राम में हो रहा फिगर है कि सिर्फ एक ही प्लेन है, अगर इन्हों आप एम डिवाइड करी नहीं हो पाएगा, अगर थोड़ा एक एंगल से एम डिवाइड करी फिर भी नहीं हो पाएगा। देयर इज ओनली वन एंड वन प्लेन व्हिच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो ये बायलैटरल सिमेट्री। उन्होंने है कि ਜਿਹੜਾ एसिमेट्रिकल है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ एग्जांपल्स ऐड ਕਰਾਂਗੇ कि एसिमेट्रिकल ਦੇ ਅੰਦਰ स्पॉन्जेस तो है एसिमेट्रिकल, बट उसके अलावा स्नेल्स ते गैस्ट्रोपॉड्स, स्नेल्स आंदा एनालिड्स के अंदर, बट वो एसिमेट्रिकल ने, ते उसके अलावा गैस्ट्रोपॉड्स, स्नेल्स या फिर गैस्ट्रोपॉड्स की गल है, ठीक है। फिर हम आ जाते कि रेडियल सिमेट्री। हम रेडियल सिमेट्री के अंदर सिलेंड्रेट्स एंड टीनोफोर्स तो है ही, बट एक काइनोडर्म्स से एडल्ट्स, मतलब जो अपने लार्वा स्टेज होंगे हैं तो भी बायलैटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं, बट एडल्ट टीनोफोर्स वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे ने। एडल्ट फॉर्म में एडल्ट फॉर्म ते उसके अलावा कुछ लोअर स्पॉन्जेस भी दिखाते हैं। स्पॉन्जेस वैसे तो एसिमेट्रिकल है, बट कुछ लोअर स्पॉन्जेस पूरे आ जाएगा बायलैटरल के अंदर। बायलैटरल के अंदर आप सीधा ये लिख सकते हैं कि कौन कौन एग्जिबिट करता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा, एक्सेप्ट ਹੁਣ एक्सेप्ट अंदर ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਕਾਈਨੋਡਰम्स ਦੀ ਲਾਰਵਾ ਸਟੇਜ ਤੇ and snails, also called gastropods, snails / gastropods, ठीक है। आगे चलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और ये की मतलब है animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm। external ectoderm हो गया तो internal endoderm हो गया, ठीक है। are called diploblastic organisms, मतलब दो ही लेयर्स है। हम जब यहाँ पहले डायग्राम देख सकते हैं, ये अंदर दो लेयर्स है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म है ते अंदर एक एंडोडर्म है, दिस इज एक्टोडर्म ते अंदर एक एंडोडर्म है, तो उन्होंने डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। बिच एक लेयर देती है मेसोग्लिया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ जस्ट ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ कि an undifferentiated layer called mesoglea is present between the ectoderm and the endoderm। कि ये लेयर डिफरेंशिएटेड नहीं है, जो बॉडी है उसमें दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स दिखा रहे हैं, बट एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है बस मेसोग्लिया ਜਿਹੜੀ एक्टोडर्म ਤੇ एंडोडर्म ਵਿੱਚ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ਤਿੰਨ लेयर्स ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ डिफरेंशिएटेड लेयर ਹੁੰਦੀ मेसोडर्म। Those animals in which developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and the endoderm are called triploblastic। एक ही दिन अंदर होते platyhelminths to chordates, ठीक है। platyhelminths to chordates, उससे पहले जितने भी हो गए पोरिफेरा, सिलेंड्रेट्स, टीनोफोर्स, ये सारे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक।
पूरे आप मेंशन कर देंगे डिप्लोप्लास्टिक कौन कौन है। पॉरीफेरा ਜਿਹਦੇ स्पॉन्जेस आते हैं पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेट्स, निडेरिया भी बोल देना उन्हें, सिलेंट्रेट्स, इसके अलावा टेनोफोरा। ठीक है, फिर आगे चलते सीलम। सीलम या सीलोम का की मतलब है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी of a cavity between the body wall and the gut wall is very important for classification. उनकी बोलेंगे cavity between the body wall and the gut wall। फिर उसके बाद आते हैं कि the body cavity is which is lined by mesoderm is called coelom। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ body cavity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ is lined by the mesoderm, ਉਹਨੂੰ coelom ਬੋਲਦੇ ਆ। Animals possessing coelom are called coelomates। जिन्हों को सीलम होता है उन्होंने सीलोमेट्स बोलते हैं। तो कीड़े फाइलम तो होंगे एनालिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, दैट इज एनालिड्स टू कॉर्डेटा सब कुल सारे सीलोमेट्स। पर एनिमल जिन्हों की बॉडी कैविटी होंगी है they have body cavity and is not lined by mesoderm. Instead, by mesoderm is present as scattered pouch in between the ectoderm and the endoderm। मतलब हम scattered pouches की तरह होंगे। और डालना डायग्राम रेफर कर दें। देखो पहले डायग्राम दिया गया कि हाँ ectoderm है, ectoderm, mesoderm, आगे mesoderm, फिर हाँ endoderm। ठीक है, उन्होंने क्या दिखाया कि जो mesoderm है स्प्लिट हो गया, मतलब समझन नहीं बोल रही हमें कि मैं स्प्लिट होकर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैविटी है या फिर ਜਿਹੜੀ कैविटी है ਉਹਨੂੰ मेसोडर्म में लाइन करनी है। ठीक है, तो मतलब जो सीलम है या बॉडी कैविटी है इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म, तो मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म जो नहीं बोलेंगे सीलोमेट्स। बट हम सेकंड डायग्राम देखो पूरे है एक्टोडर्म प्रेजेंट है के अंदर एंडोडर्म प्रेजेंट है, बट ਜਿਹੜਾ मेसोडर्म है पाउचेस ਦੇ फॉर्म ਚ है ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी as such lined by mesoderm तो नहीं बोलेंगे, बट बोलेंगे scattered pouches of mesoderm are present। तो और एनिमल्स को क्या बोलेंगे pseudocoelomates। एक ही अंदर होंगे इसके हाइमेट्स के अंदर। खुद एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है वो है acoelomates, उन्होंने बोलेंगे platyhelminths। ठीक है, अपना थर्ड डायग्राम है जिसके अंदर acoelomates दिखाया कि एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, बट बीच कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है और लिखा गया कि नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। पूरे होना मेसोग्लिया टर्मिनल कंफ्यूज नहीं होने क्योंकि सिमिलर साउंडिंग है। मेसोग्लिया तो सिर्फ 3 फाइलम्स प्रेजेंट है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स एंड टेनोफोरा। सिंस उन्होंने मेसोडर्म है ही नहीं तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आप सीलोम की गल ही नहीं करेंगे, बॉडी कैविटी की गल ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगे होर लाइन आ जाती है कि ड्यूट्रोस्टोमेट्स ते प्रोटोस्टोमेट्स की है। फिर एक होर नाले उसके अलावा एक होर आ जाती है कि शाइजोसीलोम की है। शाइजोसीलोम होता है कि produced by splitting of mesoderm ते तीन चीज फाइलम्स होंगे, एनालिड्स के अंदर होंगे, आर्थ्रोपोड्स के अंदर होंगे ते मॉलस्क्स के अंदर होंगे। तो उसके अलावा दूसरा एक होंगे एंटेरोसीलोमेट्स। एंटेरोसीलोमेट्स होंगे फॉर्म द आउट पाउचिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक गट। ठीक है, तो हम ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है देखो एक बार एनडीए के मॉक टेस्ट के अंदर आए थे, मैं ताई करके दस रही हूँ, वैसे ऐसे से इम्पोर्टेंट नहीं है। उन सीलोमेट्स को ना आगे 2 क्लासिफाई कर सकते हैं पूरे लिख दिए इतने शाइजो सीलोमेट्स होंगे ने, शाइजो सीलोम ते दूसरा होंगे एकाइनो एंटेरोसीलोम, सॉरी एंटेरो सीलम। खुद शाइजोसीलम का की है मतलब की है सीलम फॉर्म बाय splitting of mesoderm। उसके बाद आते हैं एंटेरोसीलम, इट इज फॉर्म्ड बाय
outpouching of embryonic gut. Embryonic gut. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਸੀਲਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਨਿਲਿਡਸ, ਆਰਥ੍ਰੋਪੋਡਸ ਤੇ ਮੋਲਸਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟਰੋਸਟੋਮਿਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਮਿਟਸ। ਡਿਊਟਰੋਸਟੋਮਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ onwards ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਮਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੈਟੀਹੈਲਮਿਨਸ ਤੇ ਮੋਲਸਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਮਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਲੈਟੀਹੈਲਮਿਨਸ ਤੇ ਮੋਲਸਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਲੈਟੀਹੈਲਮਿਨਸ, ਐਸਕੀਹੈਲਮਿਨਸ, ਐਨਿਲਿਡਸ, ਆਰਥ੍ਰੋਪੋਡਸ ਤੇ ਮੋਲਸਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਾਇਰਲ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਸਟੋਫੋਰ ਫਾਰਮਸ ਮਾਊਥ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा होंगे, मतलब कि वो ग्रो हो रहा होंगे अपनी जायगोट तो लेके ओदी बर्थ होने तक, या फिर जो ओदी डेवलपमेंट चल रही होंगी है उन्हें एवं होंगे कि जिवें ओपनिंग्स बनदियां ने, फिर जो ब्लास्टोफोर है जिहड़ी पहली ओपनिंग बनदी है वो माउथ बनाएगा, बट ओदा मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म ਨੂੰ बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट्स। बट ड्यूट्रोस्टोमेट्स वो वाले एनिमल्स है जिन्हां दे अंदर इनडिटर्मिनेट हुंदा है ते उस तो बाद रीडल क्लीवेज एग्जिबिट करते ने ते स्पायरल क्लीवेज एग्जिबिट करदे ने। ये भी एक बार एंटी च आया ताई करके ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और पूरे ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ ना, प्रोटोस्टोमिट्स। ये किहड़े ऑर्गेनिज्म होंदे ने? प्लैटीहेल्मिन्स टू। हुण जिन्ने भी सारे टर्मिनोलॉजी है ना सारे प्लैटीहेल्मिन्स ऑनवर्ड से यूज हो रही है। ये वाली टर्मिनोलॉजी जिनमें अगर ई सिलेमेट वगैरह ये आपा पॉरीफेरा सिलेंड्रेट या टिनोफोरा लिए नहीं बोलेंगे। प्लैटीहेल्मिन्स टू मोलस्का ने की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਾਇਰਲ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਸਿਲੋਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਸਿਲੋਮੇਟ, ਸਪਾਇਰਲ ਕਲੀਵੇਜ ਤੇ ब्लास्टोफोर माउथ बनांदा, ठीक है। उसके बाद आएगा ड्यूट्रोस्टोमिट्स। ड्यूट्रोस्टोमिट्स दिस इज इकाइनोडर्म्स onwards। एक होंदे ने इंटेरोसिलोमिट्स। सिलोमिट्स ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਡਲ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੁछ ਐਨੀਮल्स है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲੀ as well as internally it is divided into segments with a serial repetition of at least some organs। मतलब डिवाइडेड है एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली भी, तो कुछ सीरियल रेपिटेशन भी है ऑर्गन्स की। फिर अपने कितने कितने देखने को मिलता है जिਵੇਂ कि अर्थ फॉर्म जो अपने बहुत कॉमनली देखिए कि अर्थ फॉर्म के अंदर अपन मल्टीपल में स्मॉल क्यूब्स या फिर इनमें बॉक्सेस दिखते हैं जो हमें लगता है कि ज्वाइन किए हुए हैं ना, तो वो चीज को सेगमेंटेशन बोलते हैं। The body shows this pattern is called metameric segmentation। मेटामेरिक ते फिनोमिनन को बोलते हैं मेटामरिज्म। जब अर्थ फॉर्म मतलब एनिलिड्स दिखाते हैं, अर्थ फॉर्म आने एनिलिडा के अंदर, ठीक है। हम नोटोकॉर्ड की चीज है। सबसे पहले नोटोकॉर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Notochord is a mesodermal derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals। ये mesodermally derived है
रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ते डॉर्सल साइड ते बनती है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ते कुछ एनिमल्स के अंदर। उसके बाद ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟੋਕॉर्ड ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ which do not form the structure are called non coordinates। non coordinates कौन आ जाएंगे? Porifera to Echinodermatum, ठीक है। और आगे आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। The broad classification of animals is based on the common fundamental features। तो जी अपन ने कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पढ़िया ने, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं की है। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, टिश्यू है या ऑर्गन है। उसके बाद आ जाता है कि अपन इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम की गल आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम दी या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम दी। फिर उसके बाद सिमेट्री दी हो गया कि एसिमेट्रिकल है या रेडियल सिमेट्रिकल है या फिर बाइसिमेट्रिकल है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की है, डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोग्लिया है या मेसोडर्म है। फिर आ जाते हैं कि सीलोम्स, सीलोमेट्स है, सूडोसीलोमेट्स है या फिर एसीलोमेट्स है। फिर उसके बाद अपन ने खोज चीज पढ़ी सी प्रोटोस्टोमेट्स एंड ड्यूटरोस्टोमेट्स। उसके बाद आ जाएगा सेगमेंटेशन कि मेटामोरिज्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फिर नोटोकॉर्ड आ गया कि वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज मेसोडर्मली derived and present on the dorsal side during the embryonic development। वो बांधी है या नहीं, अगर बांधी है तो coordinates, अगर नहीं बांधी है तो नॉन coordinates। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन यही कॉमन फंडामेंटल फीचर्स ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਚਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਔਰ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। ਐਡਲਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਬਟ ਲਾਰਵਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। इंपॉर्टेंट सब तो मिला के एनिमीलिया तो मल्टीसेलुलर है, तो मल्टीसेलुलैरिटी के बेसिस पे कि अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, सेल वॉल एब्सेंट है, सब के बेसिस पे लगते किंगडम आके एनिमीलिया। फिर उसके अंदर आ जाते लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब तो पहला आ गया सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल ते अपा लिख के पढ़िया सी किसी का पॉरीफेरा। जेड़ा सेलुलर लेवल है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, मोस्टली एसिमेट्रिकल, बट कुछ लोअर स्पॉन्जेस है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ रेडियल सिमेट्री मिलती है ना कि बॉडी कैविटी या फिर सीलम। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बोलेगा एसिमेट्रिक क्योंकि अंदर इधर अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं तो डिप्लोब्लास्टिक है। फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ पहला किंगडम आ जाएगा पॉरीफेरा। फिर उसके बाद आगे मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के अंदर आ गया टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। दोनों अगे डिवाइड किया गया सिमेट्री के बेसिस पे, रेडियल सिमेट्री या फिर बाइलेटरल। रेडियल के अंदर अपन होर दो पढ़े थे, किहड़े दो पढ़े थे? निडेरिया या फिर जिन्होंने सिलेंट्रेट्स बोलते हैं या फिर टीनोफोरा ते एडल्ट इकाइनोडर्म्स। ਹੁਣ आ गया इन्हों के अंदर भी ऑब्वियसली सीलम एब्सेंट है, एसिलोमेट्स। उसके बाद आ गए सिलेंट्रेट्स ते टीनोफोरा। ਹੁਣ ਅੱਗੇ आ गया बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री होंगे कि बॉडी कैविटी दे बेसिस ते अगे फिर तीन डिवाइड कर दिया गया। विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स, विद फॉल्स सीलम सूडोसिलोमेट्स। फॉल्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो मेसोडर्म है एक स्मॉल पाउचेस के अंदर डिफॉर्म्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अगे आ जाते हैं ट्रू सीलम सीलोमेट्स बोलेंगे। विदाउट बॉडी कैविटी यानी प्लैटीहेल्मिन्ट्स, फॉल्स दे लिए या सूडोसिलोमेट्स दे एस्केहेल्मिन्ट्स। फिर ट्रू दे लिए जितने भी बच्चे हुए वो सारे ट्रू दे लिए आएंगे, जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। Full broad classification, the important characteristic features of the different phyla are described। फिर तक तो हो गई क्लासिफिकेशन की, अभी क्या करते हैं। इसके बाद आ गया पहला किंगडम जिन्हों बोलते हैं पॉरीफेरा। तो ਜਿਹੜੇ most of the members of phylum are commonly known as sponges। ਇਹ जनरली मरीन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ mostly asymmetrical ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये जनरली मरीन है, ये मरीन वर्ड ध्यान रखना, तो मोस्टली एसिमेट्रिकल है तो अपने आप याद हो ही जाएगा। और ये में एग्जैक्टली लाइंस बन जाती है, सी वाटर बाकी स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization।
स्पॉन्जेस है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, कि प्रिमिटिव है, मल्टी सेलुलर है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका को लाइक वाटर सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम होंगे, वाटर सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस को। तो वाटर ये में एंटर करते हैं माइन्यूट पोर्स होंगे ने पूरे बॉडी जिन्हें बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है, माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी। उसके बाद एक सेंट्रल कैविटी होंगे ने जिन्हें बोलते हैं स्पॉन्जियोसील। उसके बाद उसको बाहर चले जाते हैं और इसकम के थ्रू। फिर यहाँ डायग्राम के अंदर डिपिक्ट कर देंगे जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑस्टिया ने, ठीक है, ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू ये अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, तो ये जो कैविटी दिख रही है इन्हें बोला गया स्पॉन्जियोसील, स्पॉन्जियोसील। हुनूरे पानी अंदर जाएगा, उरे गया हुन ऊपर, हुनूरे जाके हमें बाहर जाएगा, ते है का ऑस्क्यूलम। This partial water transport is helpful in gathering food, respiration, and removal of wastage. उन्हें तीनों चीज़ें ध्यान रखनी हुई है कि फूड ਲਈ भी, रेस्पिरेशन ਲਈ भी, ਤੇ वेस्ट रिमूवल ਲਈ भी, सब ਲਈ। नाजने कुछ सेल्स थे नाम, सबसे पहले आ गया क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। एक ही करते हैं स्पॉन्जियोसील थे कैनाल्स में लाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी डाइजेशन है वो है इंट्रासेलुलर। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिस से क्लासिफाई किया गया कि सिंगल ओपनिंग है या दो ओपनिंग्स है, और डाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर है। और जब ह्यूमंस पूछे जाए डाइजेशन इंट्रा है या एक्स्ट्रा है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर क्या है डाइजेशन, क्योंकि जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस है दे आर सेक्रेटेड इनटू द बॉडी कैविटी, सॉरी इनटू द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फिर उसके बाद आ गया कि द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये तो लास्ट कोई बोन्स के मसल्स का स्केलेटन तो नहीं है, the irregular skeleton of spicules and spongin fibers का बने होंगे। Then the sexes are not separate, therefore it is hermaphrodite. Hermaphrodite और मतलब ये है कि eggs के sperms are produced by the same individual. And sperms are produced by the same individual. आगे कि जो स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। धीरे-धीरे जो रिप्रोडक्शन है वो दो वेज में होती है, एक तो एसेक्सुअली होएगी बाय फ्रैगमेंटेशन, तो उसके बाद सेक्सुअली होएगी बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, तो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट मतलब एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, which is morphologically distinct from the adult. Morphologically distinct from the adult. ठीक है। हम इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और देखेंगे, उसके पहले थोड़े एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इस अंदर की क्या आ जाएगा, साइकन जिन्हें स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया जिन्हें बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। दो तीनों डायग्राम्स हो रहे हैं, साइकन जिन्हें स्पॉन्जिला नहीं जिन्हों स्काइफा बोलिया, फिर स्पॉन्जिला विच इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्जिया विच इज अ बाथ स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया विच इज अ बाथ स्पॉन्ज, ते स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और एक ध्यान रखो, उन्हें बोलेगा तो मोस्टली मरीन, बट फ्रेश वाटर के एग्जांपल पूछी जाए तो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। नगे कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हैं। उसके बाद है कि जो पॉरीफेरा है ना वो एक ओनली फाइलम है जिन्हें नर्व नेट नहीं है। नर्व नेट का मतलब है कि उनके अंदर कोई भी हमें नर्वस सिस्टम की एंटिटी वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही न्यूरॉन्स प्रेजेंट है या फिर न्यूरोनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कैटर्ड न्यूरॉन्स मतलब सेल्स भी नहीं प्रेजेंट। दिस इज द ओनली फाइलम विदाउट नर्व नेट। और उसके बाद आ जाते कि जिहड़ी
ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ। ठीक है, पूरे हमने ऐड कर दिया रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या बोलिया गया क्योंकि जो गैमेट्स का पैसेज है बाहर जाना, क्योंकि जी फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, बट जो गैमेट्स का पैसेज है एक स्पॉन्ज से दूसरे स्पॉन्ज ओनू पास करने लिए ये वाटर कैनाल सिस्टम की इंपॉर्टेंस है, ओदी यूज है। फिर उस तो बाद आ जाएगा कि ਜਿਹੜੇ अगर क्रॉस जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होंगी है तो क्रॉस होंगी है। क्रॉस होंगी है ना मतलब है कि सपोज हमने हर्माफ्रोडाइट है, ओवस ते फिर स्पर्म्स दोनों ये प्रोड्यूस कर रहे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ते अगर इन्होंने विच फर्टिलाइजेशन हुई तो न्यू ऑफस्प्रिंग आ जाएगी। बट पॉलीफेरा के अंदर की है कि उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन चाहिए है, जब एनिमल्स प्लांट्स इधर क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं कि ओवर वन स्पंज एंड स्पर्म ऑफ अनदर स्पंज। तो इस करके वाटर कैनाल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है ते क्रॉस होती है, ठीक है। उस तो बाद आ जाएगा कि जो लार्वल स्टेजेस है उन्होंने कुछ एग्जांपल्स मतलब नाम की है। जब सपोज ये सायन है मतलब साइकिल, साइकिल के लार्वल स्टेज में की बोलते हैं ना, नाम लिख साइकिल के लार्वल स्टेज है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला उसके बाद एक और स्पॉन्ज है जिसका नाम है ल्यूकोसोलानिया। इस लार्वल स्टेज नाम के पैरेन्काइमिकुला। फिर उसके बाद जो क्वांडोसाइट्स है या फिर कॉलर सेल्स है उन्होंने फ्लैचलेटेड सेल्स भी बोल देंगे, फ्लैचलेटेड सेल्स, ठीक है। जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी होती है, बर्डिंग के थ्रू भी होती है ते जम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू भी होती है। ये जो मैंने नाम बोले सुने हुए लगने चाहिए ताकि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आया तो आंसर कर पाओ, बट ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हुन जी बॉडी कैविटी है मतलब हमें ट्रू बॉडी कैविटी तो नहीं प्रेजेंट, बट उन्होंने स्पॉन्जियोसिल बोलिया गया और सेंट्रल कैविटी है उन्होंने बोलते स्पॉन्जियोसिल। तो which material present in the cementing material जिहड़ा होंदे मेसेनकाइम। अपने ऊपर की पढ़िया सी कि मेसोडर्म लाइन करनी चाहिए है कैविटी को, ना कि मेसोग्लिया या फिर मेसेनकाइम वगैरह, मेसोडर्म। हम उस बाद अगे आते कुछ सेल्स के बारे पढ़ांगे कि केड़े-केड़े सेल्स प्रेजेंट होंदे ने पॉलीफेरा के अंदर। तो मेरे जो सेल्स उन्होंने अमीबोसाइट्स बोलते हैं, लीम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन होता है। सबसे पहले आ गया ट्रोफोसाइट्स। ट्रोफोसाइट्स का फंक्शन है फाइनल डाइजेशन। उसके बाद आ गया थिसोसाइट्स। थिसोसाइट्स का फंक्शन है स्टोरेज सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद आ गया आर्कियोसाइट्स, इन्हें बोलते टोटिपोटेंट सेल्स। उसके बाद आएगा स्क्लेरोब्लास्ट्स। स्क्लेरोब्लास्ट ये स्पॉन्जियोब्लास्ट्स बन सकते हैं, स्पॉन्जियोब्लास्ट्स या फिर कैल्कोब्लास्ट्स या फिर सिलिकोब्लास्ट्स, ठीक है।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪल्स ਐਡ ऑन करते हैं कि एग्जांपल्स अंदर की है। अपन बेसिक एग्जांपल तो पढ़िए ने, हम थोड़ा और ऐड करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो एक लार्ज टॉलेस्ट स्पॉन्ज है, उसका नाम है पुटेरियन या फिर नेपच्यून्स ग्लोब। फिर जिहड़ा साइकन है, इसका नाम है एक और क्राउन या फिर अर्न स्पॉन्ज। उस तो बाद एंटी के अंदर दो पूछे गए ने, उन्होंने बारे दसती हूँ। एक तो क्लियोना पूछा गया, इसका नाम है बोरिंग स्पॉन्ज। तो इसके अलावा एक और है यूप्लेक्टिला, जिन्हें वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। यूप्लेक्टिला, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। अब ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੇ ਫਾਈਲਮ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਲੈਂਟ੍ਰੇਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਡੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਂਟ੍ਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੀਡੋਲੋਜੀ, that is study of nidaria. Nidology, study of nidarians. लगते चलते हैं। एक फैटिक है, वो जिन्हें मोस्टली मरीन है, ससाइल या फिर फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। वो नीचे डायग्राम दिखता गया। ससाइल मतलब फ्लोरल फिक्स्ड है, बट फ्री स्विमिंग मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकते हैं ना, मोबाइल नहीं है। फिर इन्होंने अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। ते इन्होंने नाम निडेरिया क्यों है, एक सेल्स तो डिराइव किया गया नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है which contain the stinging capsule or the nematocysts present on the tentacles and the body. कितने प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स एंड दी बॉडी पे। तो इन्होंने काम किया होता है नीडोब्लास्ट का। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द स्प्रे। स्प्रे को एंकर करना अपने डिफेंस मैकेनिज्म ले, ते कैप्चर ऑफ द स्प्रे ले। फिर उसके बाद आ रहे हैं कि निडेरियंस है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, they are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. वर्ड है hypostome, कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, सिंगल माउथ है, दोनों माउथ मतलब सिंगल ओपनिंग है, माउथ या फिर हाइपोस्टोम थे। वो जो डाइजेशन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर as well as intracellular. Some of the ingredients, for example, corals have a skeleton composed of calcium carbonate. और ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਲਟਨ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਡੇਰੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਬੋਡੀ ਫਾਰਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਪ ਐਂਡ ਮੈਡੂਸਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਬੋਡੀ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਸਾਈਲ ਐਂਡ ਮੈਡੂਸਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ फ्री स्विमिंग सॉरी लिविंग। द फॉर्मर इज ससाइल, मतलब पॉलिप है और ससाइल है, जब हमने बोलिया गया। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੂਸਾ है is a sessile and cylindrical form like Hydra and Adamsia. हाईलाइट कर देंगे अब कि पॉलिप है, ससाइल सिलेंड्रिकल है, हाइड्रा थे एडेम्सिया मंगो। मेरा जो लैटर है मतलब कि मेडूसा वो है अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है, जिਵੇਂ कि ऑरेलिया या फिर जेलीफिश है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਡੇਰੀਅਨਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਜੈਨਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੋਲਿਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਮੈਡੂਸਾ ਫਾਰਮ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਡੇਰੀਅਨਸ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਬੋਥ ਫਾਰਮਸ the alteration of generation, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਾਜੈਨਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। that is polyps produce medusa asexually। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ polyps ਹੈ ਉਹ asexually produce ਕਰਦੇ ਨੇ medusa ਨੂੰ, but ਜਿਹੜੇ medusa ਹੈ ਉਹ sexually produce ਕਰਦੇ ਨੇ polyps ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਬੀਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਸੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਮੈਨ ਆਫ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਡੈਮਸੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਐਨੇਮੋਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਂਟੀਨਿਲਾ ਸੀ ਪੈਨ, ਗੋਰਜੂਨਾ ਸੀ ਫੈਨ, ਮੈਂਡਰੀਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਰਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ एनडीए ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਪਸ ਹੋਤੇ एसेक्सुअल फॉर्म्स है, तो ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੂਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ सेक्सुअल फॉर्म्स। पॉलिप्स और एसेक्सुअल फॉर्म्स, क्योंकि पॉलिप्स है ਉਹਨੂੰ एसेक्सुअल फॉर्म्स बोलते हैं। एसेक्सुअल फॉर्म ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੂਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ सेक्सुअल फॉर्म बोलते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करते हैं। नहीं हो गया। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਰਵ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਪੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਰੇਮਨ डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स में इम्पल्स आएगा सेंटर न्यूक्लियस वगैरह सेंटर साइटोप्लाज्म पे जाएगा, एक्सॉन से ट्रैवल होएगा, फिर अगे एक्सॉन बल्ब्स तक चला जाएगा। ये होता है नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर। तो मतलब न्यूरॉन्स पोलर है कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, बट जेडे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है न्यूडीजन्स के अंदर वो होंगे ने एपोलर। हुन मैं की बोलिया जरा आप साइड ते लिख लेंगे नाल नाल। सबसे पहले जेडी रेस्पिरेशन है हो रही है सिंपल डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। नर्वस सिस्टम की गल की जाए तो नर्व नेट प्रेजेंट होंदा है, ते जिहड़े न्यूरॉन्स है वो एपोलर होंदे ने, ठीक है। उसके अलावा हम आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो है, सेक्सुअल भी है एसेक्सुअल भी है। सेक्सुअल होती है मतलब एसेक्सुअल होती है बर्डिंग के थ्रू, ऊपर अपन बड़े फ्रैगमेंटेशन होती है, थे कुछ कंडीशंस में बर्डिंग भी हो सकती है। बर्डिंग ते सेक्सुअल है हर्माफ्रोडाइट्स भी होंगे ने और डायसिस भी होंगे ने। हर्माफ्रोडाइट्स के अंदर आ जाएगा हर्माफ्रोडाइट हाइड्रा, ते डायसिस, डायसिस मतलब दो ऑर्गेनिजम्स सेरे होंगे ने। ते अंदर आ जाएगा ओबेलिया, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ फर्टिलाइजेशन है वो भी अलग अलग होंगी है। जिहड़ा हाइड्रा है ਉਹਦੇ अंदर फर्टिलाइजेशन लिख देंगे अगर फर्टिलाइजेशन है हाइड्रा डोनल ओबेलिया एक्सटर्नल, ठीक है। फिर अगे आ जाएगा कि डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट भी इन्होंने अलग अलग है। जिहड़ा हाइड्रा है ਉਹਦੇ अंदर होंगी है डायरेक्ट, मतलब नो लार्वल स्टेज। फिर जिहड़ा ओबेलिया है ਉਹਦੇ अंदर है इनडायरेक्ट। लार्वल फॉर्म्स है बट ठीक है आपको स्किप कर देंगे, बट ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ਹੁਣ एक एनडीए के अंदर क्वेश्चन आया सीगा, आपको ऊपर भी एक बार मेंशन करना चाहिए कि जब पॉरीफेरा है नो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नो नर्व नेट, ठीक है। उन्होंने ਇਹਦੇ ਲਈ इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई सी कि नर्व नेट तो प्रेजेंट है बट दे हैव नो ब्रेन, नो नर्व नेट प्रेजेंट है बट नो ब्रेन, ठीक है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ कुछ एनडीए के अंदर की क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई नो ये बहुत वेग ते
नॉट रिलेटेड है, अनरिलेटेड है, बट ठीक है कदे बाय चांस आ गए। काफी ਜਿਹੜੇ एंटीरियर मॉक टेस्ट ਸੀਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲੀ ਨੀਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਰੈਂਡਮਲੀ ਐਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪੀਐਮਟੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰਾ possesses many testes ਤੇ one ovary। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਵ ਨੇਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਟਡ ਬਾय ਗੈਸਟ੍ਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਵਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿਦ ਸਿੰਗਲ ਓਪਨਿੰਗ, ਬਟ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਟ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो तो एब्सेंट है, बट कंपनसेट किवें हुंदा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी नाल। और उस तो बाद एक के डायग्राम दी लेबलिंग देख लेंगे, उस तो बाद अपन नेक्स्ट फाइलम ते चलांगे। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੀਡੋਬਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇਮਸ ਹੈ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖੋ। ਨੀਡੋਬਲਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਡੋਸਾइट्स भी बोलते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है नीडोसाइट्स। उसके अलावा और क्या बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। उसके अलावा नेमाटोब्लास्ट्स। ठीक है, और ये लेबलिंग देखते हैं थोड़ी ਆਪਾਂ। इन्हें तो बोलते हैं नीमा या फिर फ्लैजिला। उसके बाद लिड या फिर ऊपर फिल्म आएगा, जी आ चीज है दिस इज लिड, जी आ चीज है ये है ट्रिगर, नीडोसेल या फिर ट्रिगर सी है नीडोसेल या फिर ट्रिगर। फिर उसके बाद आ जाएगा दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल है तेरे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आएगा नेमाटोसिस्ट, जो अंदर है इन्हें बोलते हैं नेमाटोसिस्ट। तेरा ये चीज है इन्हें बोलते हैं लास्ट। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮੈਟੋਸਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਿਮੈਟੋਸਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਿਪਨੋਟੌਕਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ एग्जाम्पल्स के अंदर फाइसेलिया, डेम्सिया, पेंटोनेला, जॉर्जिया ते मेंडरिना तो हो गया। उसके अलावा आ जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर पॉलिप है या फिर वाटर सर्पेंट बोलते हैं। बहुत घट एग्जाम्पल्स दस रही है, सिर्फ रिलेटेड है, तो ट्राई करना कि उन्होंने याद कर लेना। फिर उस तो बाद मतलब बहुत एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जी भी है उन्होंने भी ट्राई करना। फिर फंजिया है, उन्होंने मशरूम कोरल बोलते हैं। फिर उस तो बाद ऐसा चलने इम्पोर्टेंट है बस। इस तो बाद एक और चीज है कि जो फाइसेलिया है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है बट मोस्ट डेडली ते पॉइजनस हुंदा है ते पॉलीमॉर्फिज्म भी एग्जिबिट करता है ते इहदे नाल अपना नीडेरिया खत्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। ਆਪਾਂ ਨੇ बेसिक फीचर्स डिस्कस किए जिहदे बेसिस ते क्लासिफिकेशन हुंदी है। फिर उस तो बाद क्लासिफिकेशन देखी किवें किवें कीते जांदे ते किहड़े-किहड़े फाइलम्स है। तो उस तो बाद दो फाइलम्स नु डिस्कस किया, पॉरीफेरा ते नीडेरिया। तो नेक्स्ट सेशन दे अंदर आपां
तीनों हुआ तो कंटिन्यू करानी है। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।